Okay. In previous class, we have to study about the sequential circuit, and the basic component for sequential circuit is the flip-flop. Basic requirement to design a sequential circuit. So basic component will be the flip-flop. थोड़ा सा recall करते हैं previous lecture को. So there we was discuss about the difference between the combinational circuit and the sequential circuit. In case of combinational circuit, there will be no any type of memory element. That means the present output is not depend upon previous input. Okay, but in case of sequential circuit, it consists the memory element such as flip flop, the basic component which is using as a memory element in sequential circuit, that is known as the flip flop, and the flip flop is a 1-bit memory element. Okay. Here is the flip flop is the positive edge trigger, negative edge trigger. There are the two configuration for triggering of the flip flop. There may be positive edge trigger in upward direction. We have to consider in the upward direction. Whereas during the negative edge trigger, that will be in the downward direction. Okay. After that, we was discussed about the types of flip flop. There are the 5 types of flip flop. SR flip flop, D flip flop, JK flip flop, T flip flop, and master slave flip flop. They are the two categories of the flip flop: asynchronous flip flop and synchronous flip flop. In case of asynchronous flip flop, the clock pulse is not applied, whereas in case of synchronous flip flop, we have to apply the clock pulse to change the state of the flip flop or activate the flip flop. Okay. So let us start. The first one is the set reset flip flop. The set reset flip flop basically defined by using the bistable multivibrator. Bistable multivibrator in which we have to using the two transistor 1 and the transistor 2. कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगी कि एक ट्रांजिस्टर का आउटपुट दूसरे के इनपुट में कनेक्टेड रहेगा, दूसरे का आउटपुट पहले के इनपुट में कनेक्टेड रहेगा. So as seen in this one circuit diagram, in case of transistor 2, the output of Q is connected to input of the transistor 1, and the output of the transistor 1, that is the Q bar, is connected to input of the transistor 2. So basically it is in the twisted form. That means output एक का output दूसरे के input में, दूसरे का output पहले के input में. So that is defined in the twisted form connection of the two transistor, and in which the at a time one transistor in the on condition and another will be in the off condition. Okay. इसके बाद अपन स्टडी करें there are the 4 cases. S1 reset 1. The reset terminal is connected to transistor 1 input base terminal, and the reset terminal is connected to base terminal or input terminal of transistor 2, and apply the various cases when in which the case 1, when the S equals to 1 and R equals to 1. So that is known as the set state, when the set terminal is connected to logic 1 and reset terminal is connected to logic 0. Okay. In this case, the output Q equals to 1 and Q bar equals to 0. Second case, when the S equals to 0, R equals to 1, reset condition है. Reset condition में output Q क्या है? 0 है, Q bar is 1. Third one case, S equals to 0, R equals to 0, that is known as the no change condition. Okay, जो previous state थी वही next state इसमें applicable रहेगी. Next, the last one is the fourth case is the set equals to 1, reset equals to 1, that is known as the race around condition. Race around condition, that means the both transistor are try to get the on state. Okay, तो दोनों के बीच में क्या रहेगी? रेस कंडीशन. ओके, अब आज के टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द SR flip flop operation by using the logic gate. ठीक है, प्रीवियसली अपन ने देखा था SR flip flop design or define the operation with the help of bistable multivibrator, where the two transistors are connected in the twisted form. And now we will discuss the operation of the SR flip flop by using the logic gate. Okay, तो फर्स्ट लॉजिक गेट अपन ने कौन सा कंसीडर करा है? नॉर गेट से अपन डिजाइन कर रहे हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप. सो एसआर फ्लिप फ्लॉप इज डिजाइन और डिफाइन इट्स कॉन्फ़िगरेशन बाय यूजिंग द नॉर लॉजिक गेट. अब इस नॉर लॉजिक गेट के रेस्पेक्टिव अपन इसको एनालिसिस करें इस लॉजिक डायग्राम में. सो देयर आर द टू इनपुट्स एस एंड आर
टू आउटपुट Q एंड Q बार। ओके, अब इसमें देखें कि इस नॉर गेट का, फर्स्ट नॉर गेट का जो आउटपुट है ये एक्चुअली किससे कनेक्टेड है, नॉर गेट सेकंड के इनपुट से। ठीक है, सेकंड का जो आउटपुट है वो किससे कनेक्टेड है, नॉर गेट फर्स्ट के इनपुट से। सो ये भी किस फॉर्म में आ गया, ट्विस्टेड फॉर्म में। ट्विस्टेड फॉर्म कैसे, एक का आउटपुट पहले के इनपुट से, दूसरे का आउटपुट पहले के इनपुट से। ठीक है ना, पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट से, दूसरे का आउटपुट पहले के इनपुट से। तो ये सिमिलर वही अप्रोच हुई जैसे अपन ट्रांजिस्टर में दूसरे पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट में, दूसरे का आउटपुट पहले के इनपुट में कनेक्ट कर रहे थे। सिमिलर वे में अपन ने यहाँ भी वही करा कि आउटपुट, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में, दूसरे का आउटपुट पहले के इनपुट में। इज इट क्लियर? इनपुट टर्मिनल एस और आर अपन ने कनेक्ट करे, आउटपुट टर्मिनल क्यू और क्यू बार अपन ने कंसर्न करे। अब ये ट्रूथ टेबल अपन ने डिफाइन करी। ट्रूथ टेबल के रेस्पेक्टिव क्या है कि वह एस और आर दोनों पे अगर अपन 0 0 टर्मिनल दें, 0 0 कनेक्टेड करें, तो उस केस में आउटपुट स्टेट क्या आएगी, Qn+1 क्या है, नेक्स्ट स्टेट, Qn क्या है, प्रीवियस स्टेट। ठीक है, इस ट्रूथ टेबल के रेस्पेक्टिव Qn+1 क्या है, नेक्स्ट स्टेट, Qn क्या है, प्रीवियस स्टेट। So in this case of first one, when S and R both are 0, that means the Qn+1 next state will be the Qn. That means कि जो previous state थी वही next stage है, state में कोई change नहीं हुआ। So that is known as the no change state or no change condition. जैसे previous अपन कौन सा एक केस कंसिडर हुआ, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है, S = 0, R = 0, that is known as the no change condition. तो सिमिलर वे में S = 0, R = 0, that means the output state या next state equals to Qn previous state की इक्वल होगी, that is known as the no change condition. Okay, next condition ले अपन S = 0, R = 1। कौन सी कंडीशन है, रीसेट कंडीशन। रीसेट कंडीशन किससे रिलेवेंट है, केस सेकंड से। केस सेकंड में क्या होगा, Q पे 0, Q बार पे 1, तो Q पे 0 एंड Q बार पे 1। Is it clear? नेक्स्ट अपन ने लिया S = 1, R = 0। कौन सा केस है, केस फर्स्ट, ये वाला केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। इस केस में क्या है, सेट स्टेट है। सेट स्टेट में क्या रहेगा, Q पे 1, Q बार पे 0, सेट कंडीशन। S और R दोनों पे 1 1 लें तो कौन सी कंडीशन है, इनडिटरमिनेट कंडीशन और द रेस अराउंड कंडीशन। इनडिटरमिनेट या रेस अराउंड कंडीशन का मीनिंग क्या है कि आउटपुट क्या है, वो साइमल्टेनियसली चेंज होता रहेगा। आउटपुट 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 1 हुआ, 0 1 0 1 कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। तो उस केस को अपन क्या कहेंगे, इनडिटरमिनेट कंडीशन। आउटपुट अगर जैसे 1 हो गया तो डिटरमाइंड रहेगा, 0 है तो वो डिटरमाइंड रहेगा, प्रीवियस स्टेट है तो भी वो डिटरमाइंड है। पर अगर वो कंटिन्यूअस फ्लक्चुएट करता रहा, कंटिन्यूअस चेंज होता रहा, 0 1 0 1 0 1 होता रहा, तो उस केस में अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये 0 है कि 1 है एक्चुअली। सो दैट इज नोन एज द इनडिटरमिनेट कंडीशन। अब जैसे नॉर गेट की टेबल को अपन है, क्योंकि ये कौन सा गेट अपन लॉजिक गेट से डिजाइन कर रहे हैं, इसको नॉर गेट से। तो नॉर गेट का अपन टेबल देखें, उस केस से अपन क्या एनालिसिस आएगा, A और B जब 0 0 है तो आउटपुट 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 0। कंक्लूजन क्या लिया, नॉर गेट में जब बोथ 0 हो तब आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज वो 0 रहेगा। यानी दोनों पे 0 0 है तो उस केस में आउटपुट Y क्या रहेगा, 1 रहेगा। अदरवाइज वो क्या है, तीनों स्टेट में क्या है, 0 0 रहेगा। अब जैसे अपन इसको स्टडी करें या एनालिसिस करें कि S और R, जैसे फर्स्ट रो या फर्स्ट केस कंसीडर करें, S और R दोनों पे क्या है, 0 0 है। Q अपन ने जैसे ले लिया 0, तो ये 0 और 0 जाके यहाँ क्या बना, 0 0 करा तो 1 1 इधर गया, 1 और 0 का होगा तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 0। तो Q बार नेक्स्ट स्टेट में भी क्या आया, ये बन के 0 है। ठीक है, फिर ये 0 0 इधर गया, ये 1 1 को इधर गया, 1 और 0 के साथ करा तो 0, फिर ये 0 रहा। फिर तो आगे नेक्स्ट स्टेट भी क्या रही, इसके 0 रही। फिर ये 0 को दिया, इसके साथ 0 भी 0 तो 1, तो नेक्स्ट स्टेट भी, तो नेक्स्ट स्टेट क्या रही, चेंज, मतलब जो प्रीवियस स्टेट थी वही नेक्स्ट स्टेट रहती है। दैट इज द नो चेंज कंडीशन। नेक्स्ट जैसे मैंने ले S पे 0, नेक्स्ट ले S पे 0, R पे 1, तो S पे 0 और R पे 1। ठीक है, S पे 0 और R पे 1। अब Q पे अपन ने क्या लिया, 0, तो 0 0 को दिया अपन ने, तो 0 0 का क्या है, 1 1 और 1 का क्या रहा, तो क्या आएगा, 0, तो ये 0 ही बना रहा। तो Q पे क्या रहा, 0, Q बार पे क्या रहा, 1, तो Q पे रहा 0, Q बार पे रहा 1। नेक्स्ट अपन ने जैसे S को 1 करें, R को 0 करें, S को 1 करा, Q पे अपन ने 1 लिया, तो 1 और 1 का क्या करा, 1 और 1 का करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये 0 फिर इस R के साथ 0 है, तो 0 0 का करेंगे तो 1, तो Q बार Q क्या रहा, 1 रहा, Q 1 रहा, Q बार क्या रहा, 0, ये 0 आ गया, सेट स्टेट आ गई।
ठीक है। तो अपन जो ट्रू टेबल अपन बना रहे हैं, इस ट्रू टेबल को इस वाले लॉजिक सर्किट से भी जस्टिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, 1 1 लेंगे तो ये क्या है, कंडीशन चेंज होती रहेगी, 0 होगा फिर 1 होगा फिर 0 होगा, ये 1 होगा, तो साइमल्टेनियसली क्या ये वेरिएबल है, फ्लक्चुएट कर रहा है, 0 1 के बीच में फ्लक्चुएट। सो दैट इज नोन एज द इंडिटरमिनेट कंडीशन और द रेस अराउंड कंडीशन। अब जैसे केस फर्स्ट लिया अपन, एस और आर बोथ आर 0, तो प्रीवियस स्टेट जैसे अपन ने 0 ले ली, फॉर एग्जांपल प्रीवियस स्टेट 0 ली, नॉर सेकंड पे लिया, एस 0 है, क्यू एन 0 है, तो आउटपुट 1 गया। ठीक है, क्यू एन बार 1 बार, क्यू वन बार को अपन फिर नॉर फर्स्ट के लिए अपन देखेंगे तो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है, तो क्यू एन प्लस 1 क्या निकल के आया, 0। तो क्यू एन भी 0 था, क्यू एन प्लस 1 भी 0 है, तो कोई आगे वाली स्टेट भी चेंज नहीं हुई, प्रीवियस स्टेट भी 0 थी, नेक्स्ट स्टेट भी 0 थी, तो दैट इज द नो चेंज कंडीशन। इज इट क्लियर? बाय द वे, अगर क्या मैं जैसे क्यू एन क्या था, 1 मान लिया, जैसे पहले अपन ने मान रहे थे 0 पर, मैं मानता हूँ अगर क्यू एन अगर 1 है, तो फिर अपन नॉर 2 के लिए देखें तो 1 और 0 का करेंगे तो क्या आएगा, 0। ये क्यू बार है, ये 0 किसके साथ जाएगा, नॉर 1 के साथ। नॉर 1 पे जाने के बाद ये आर के साथ जो 0 है उससे कंबाइन करेगा नॉर ऑपरेशन के लिए, तो 0 0 का क्या गया, 1। तो प्रीवियस स्टेट भी 1 थी, नेक्स्ट स्टेट भी 1 आई, प्रीवियस स्टेट भी 1 थी, क्यू एन इक्वल टू 1 था, क्यू एन प्लस 1 भी क्या है, 1 ही आया, तो जो 1 था वो 1 का 1 ही एज इट इज बना रहा, तो दैट इज नोन एज द नो चेंज कंडीशन। इज इट क्लियर? दोनों केस कंसीडर कर लिए, प्रीवियस केस एक बार 0 लेके देखा तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही आई, प्रीवियस स्टेट एक बार 1 लेके देखा तो भी नेक्स्ट स्टेट 1 आई, तो प्रीवियस स्टेट थी वही नेक्स्ट स्टेट थी, तो कोई चेंज, कोई कंडीशन में चेंज नहीं आया, कोई स्टेट में चेंज नहीं हुआ, दैट इज नोन द नो चेंज कंडीशन। ओके, सेकंड केस लिया, s equals to 0, r equals to 1, if previous state q n equals to 1 है ना, तो नॉर गेट सेकंड के लिए s equals to 0 ले लिया, क्यू एन इक्वल टू 1 ले लिया, 0 1 का करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0 1 का करेंगे तो आउटपुट क्या, 0 आएगा, तो ये 0 आया। ये 0 फिर किससे रिलीवेंट हुआ, रीसेट वाले टर्मिनल से, तो 0 1 का कंबाइन करेंगे तो क्या आया, 0 आया। Hence output or next state qn plus 1 equals to 0 when previous state is 1। ठीक है, तो जब s इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1 है, तो आउटपुट स्टेट क्या आएगी, 1 आ रही है, आउटपुट स्टेट क्या आ रही है, सॉरी आउटपुट स्टेट क्या आएगी, 0 आएगी, आउटपुट स्टेट 0, जबकि प्रीवियस स्टेट अपन क्या ले रहे थे, 1, तो नेक्स्ट स्टेट किसमें ट्रांसफॉर्म होगी, 0 वाली केस में। बाय द वे, प्रीवियस केस 0 है, जैसे s इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1 है, प्रीवियस स्टेट में वो 0 है, तो उस केस में क्या होगा, s इक्वल टू 0, क्यू एन इक्वल टू 0, आउटपुट आया 1, फिर 1 को किससे को रिलेट करा, r इक्वल टू 1 से, 1 1 का करा तो 0, तो नेक्स्ट स्टेट, तब भी नेक्स्ट स्टेट क्या बनी रही, 0 बनी रही, क्यू एन प्लस 1 उस केस में भी क्या आया, 0 आया, मतलब प्रीवियस अगर क्यू एन 1 था तो भी क्यू एन प्लस 1 0 आ रहा था, क्यू एन अगर अपन 0 माने तो भी आउटपुट स्टेट क्या आएगी, 0 आएगी, क्यू एन प्लस 1 क्या आएगा, 0 आएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि s अगर 0 है तो आउटपुट स्टेट क्या आएगी, 0 ही आएगी 100%। सेट इक्वल टू 0 है, r इक्वल टू 1 है, तो आउटपुट स्टेट क्या आएगी, 0 आएगी। Conclusion. The conclusion is that when s equals to 0 and r equals to 1, the output or next state will be 0. Whenever previous state may be 0 or 1. Previous state 0 है या 1 है उससे मैटर नहीं करेगा, पर आउटपुट स्टेट क्या 0 ही आएगी। किस केस में, when s equals to 0 and r equals to 1. क्लियर हुआ? अब जैसे थर्ड केस लिया, थर्ड केस में क्या s equals to 1 करा, r equals to 0 लिया। अब मैं अज्यूम करा कि प्रीवियसली उसमें कोई 0 स्टोर था, है ना, प्रीवियसली उसमें क्या 0 स्टोर था, तो उस केस में क्या हुआ कि क्यू एन 0 लिया, s इक्वल टू 1 लिया, आउटपुट 0 आया। ये आउटपुट 0 किससे कोरिलेट हुआ, r इक्वल टू 0 से, तो आउटपुट क्या हो गया, 1 हो गया, यानी नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई, क्यू एन प्लस 1 क्या आ गई, 1 आ गई। प्रीवियसली क्या था, 0 था, नेक्स्ट स्टेट में क्या बन गया, 1। क्लियर? अब बाय द वे अगर प्रीवियसली वो 0 की बजाय 1 हो, प्रीवियसली उसमें 0 स्टोर की बजाय 1 स्टोर्ड है, उस केस में क्या होगा, तो q इक्वल क्यू एन 1, प्रीवियसली स्टोर डेटा 1 है, s इक्वल टू 1 है, नॉर गेट सेकंड के लिए आउटपुट क्या दे दिया उसने, 0 दे दिया। ये 0 किससे को रिलेट हुआ, r से, r इक्वल टू 0 से, तो 0 0 का नॉर गेट में देंगे तो आउटपुट क्या है, 1 आया। तो अल्टीमेटली प्रीवियसली 0 है या 1 है, आउटपुट क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो आउटपुट 1 का मतलब कब, कौन सा केस जस्टिफाइड होगा, आउटपुट 1 है वो कब आएगा, व्हेन s इक्वल्स टू 1 एंड r इक्वल्स टू 0, यानी अगर सेट टर्मिनल हाई है तो आउटपुट 1 आएगा, सेट टर्मिनल 0 है तो आउटपुट 0 आएगा। फाइनल कंक्लूजन।
So conclusion that for s equals to 1 and r equals to 0, next state will be 1 whenever previous state may be 0 or 1. यानी previous state 0 है या 1 है उससे मैटर नहीं करेगा, आउटपुट 1 ही आएगा. किस स्टेट में 1 आएगा? when s equals to 1 and r equals to 0. Clear? Next fourth case, when s equals to 1 and r equals to 1, if qn equals to 0, जैसे s और r दोनों पे 1 में ले लिया, प्रीवियसली अगर उसमें 0 स्टोर्ड है तो उस केस में क्या होगा कि s इक्वल्स टू 1 है, qn इक्वल्स टू 0 है, तो आउटपुट क्या आया? 0 है. ये आउटपुट 0 किससे कोरिलेटेड हो गया? नॉर 1 के r इक्वल्स टू 1 से, तो आउटपुट क्या हो गया? 0 हो गया. यानी qn 0 था, आउटपुट भी 0 आया. फॉर एग्जाम्पल अगर qn 1 था, बाय द वे प्रीवियसली स्टोर्ड 1 था, तो s इक्वल्स टू 1, qn इक्वल्स टू 1, आउटपुट 0 आया. ये आउटपुट 0 r इक्वल्स टू 1 से कोरिलेटेड हुआ, तो qn प्लस 1 क्या आया? 0 आ गया. ठीक है. तो अब ये कौन सी कंडीशन होगी? इनडिटरमिनेट कंडीशन. सो द व्हेन s इक्वल्स टू 1 r इक्वल्स टू 1, आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट इज 0 व्हेनेवर प्रीवियस स्टेट इज 0 और 1. सो इनडिटरमिनेट केस रहेगा कि 0 है कि 1 है. सो q and q bar शुड बी इन बोथ. अब इसमें क्या हुआ कि जैसे आउटपुट स्टेट तो 0 है, पर एक ऑब्जर्व करने वाली चीज और इम्पोर्टेंट चीज क्या है बेटा इसमें? देखो, इसमें सबसे बड़ी ऑब्जर्व करने वाली चीज इसमें ये है कि Q1 जो प्रीवियसली Q1 0 था, तो Q1 बार भी क्या हुआ? 0 ही आया. जबकि पॉसिबल है क्या? अगर Q1 0 है तो Q1 बार क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. Q1 अगर 1 है तो Q1 बार क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. बट इस केस में अपन क्या देख रहे हैं? ये दोनों सेम है. यहाँ पे अपन देख रहे हैं Q1 भी 0 है, Q1 बार भी क्या आ रहा है? 0 है. तो ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी? इनडिटरमिनेट कंडीशन. ये क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों चेंज होनी चाहिए. Q1 0 है तो Q1 बार 1 आना चाहिए. Q1 बार अगर Qn अगर 1 है तो Qn बार क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. ठीक है. सो दैट इज नोन एज द इनडिटरमिनेट कंडीशन. ठीक है. तो ये अपन ने आज स्टडी करी एसआर फ्लिप फ्लॉप को एनालिसिस करा बाय यूजिंग द लॉजिक गेट. और लॉजिक गेट कौन सा अपन ने काम में लिया? नॉर गेट. नॉर गेट के रेस्पेक्टिव अपन ने ट्रुथ टेबल डिजाइन करी. ठीक है. ट्रुथ टेबल डिजाइन किया, ट्रुथ टेबल के सारे केसेस का अपन ने एनालिसिस करा. ठीक है. तो आज मैंने जो पढ़ाया हुआ है इसको, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है इस सब्जेक्ट में. सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, ये फ्लिप फ्लॉप वाला एक चैप्टर है. सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसका एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है. कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे फोन पे, व्हाट्सएप पे, क्लासरूम में, जब मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ तब भी आप मुझसे डिस्कशन करते हैं. जहां भी कंफर्टेबल हो आप मुझसे इसका डिस्कशन कर सकते हो. ठीक है. और होप्स हो कि आपने बुक्स वगैरह इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ली होगी, तो आप बुक से स्टडी करो. जो मैंने यूट्यूब के जो ये लेक्चर बनाया इसको कॉलेज के यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ. कॉलेज लेक्चर जो लेक्चर हैं इनको भी स्टडी करो जो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ. दूसरे मैंने आपके गूगल क्लासरूम पे पीपीटी भी अपलोड कर दी है सीक्वेंशियल सर्किट की. उन पीपीटी की स्टडी करो, वो आपके एज ए नोट्स भी काम में आ जाएंगी. और इन दोनों सबको पढ़ने के बाद भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझसे टेलीफोनिक कम्युनिकेट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हो, क्लासरूम में कम्युनिकेट कर सकते हो. है ना. इसको पढ़ो बेटा, इसकी स्टडी करो. है ना. और जो भी कोई प्रॉब्लम या कोई इशू आता है तो मुझसे डिस्कशन करो. ओके, थैंक यू.